Good morning, students. I am your teacher Anil sir, and today we are going to discuss about your textbooks, and we are going to start a new chapter of your supplementary reader. Students, as you can see on the screen that there is a book of supplementary reader for class 9. It is Moments, and we are going to discuss about the chapters which is contained in this book. Apart from this book Moments, you have the main textbook which is named as Beehive, and for your kind information I want to tell you that your course has been changed. The class 9 course of the last year and the class 9 course initiated from this year will be different. The Beehive and the Moments book are not in the previous year. 9 course has been completely changed in English. There are new chapters, new books. But today I am going to deal with the supplementary reader, because supplementary reader is an easy book to deal with. There are some easy chapters to understand, and the textbook has all the type of elaborations of grammar as well as the other aspects of literature. So textbook we will start in the latter phase. Maybe we will do the first chapter of our supplementary reader and simultaneously we will start the textbook. ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर करने के बाद हम लोग टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर शुरू करें. तो फिलहाल हम लोग इस सप्लीमेंट्री रीडर की बुक को डील करने वाले हैं और इसके कंटेंट को सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट this is the supplementary reader book which is actually given to you for reading variety of materials. In the stories which has been shown to you on the screen as your contents, you are going to read the stories of mystery, adventure, growing up, romance, courage, विट, ह्यूमर एक्सेट्रा. तो बहुत तरह की भावनाओं के बारे में आप इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो. अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो इट इज़ द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद. नाउ मुल्क राज आनंद इज ए राइटर ऑफ इंडियन origin. He basically writes the story for the children. And then again the second chapter is written by Ruskin Bond, The Adventures of Toto. Ruskin Bond is also a good storyteller for children. Then the third chapter is Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman has written this story, and as far as R.K. Lakshman is concerned, he is basically dealing with the cartoons as well as the children's stories. Then again chapter 4 is In the Kingdom of Fools. It is a Kannada folk tale written by A.K. Ramanujan, a South Indian. Then again chapter 5 is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. I remember that I have written this chapter in maybe my period of 6th to 10th class. In between 6th to 10th class I have read this chapter, The Happy Prince, in my school days, and I have remembered the chapter up till now, and it's a very wonderful chapter written by Oscar Wilde. And then chapter 6 is Weathering the Storm in Idsama, written by Harsh Mandar. Chapter 7 is The Last Leaf, written by O. Henry. Chapter 8 is written by A House is Not a Home, written by Zen Godioso. Chapter 9 is written by The Accidental Tourist, is written by Bill Bryson. And last but not the least, the chapter 10th, The Beggar, is written by Anton Chekhov. So these are the 10 chapters which you are going to read, and almost 50% of the chapters are written by the Indian writers, and the rest of the 50% chapters are of the international reputed writers. And
Out of those writers, Oscar Wilde, O. Henry, and Anton Chekhov are the most famous ones. And among Indians, R.K. Lakshman, Ruskin Bond, and Mulk Raj Anand, all those are very very famous. कुछ नाम हैं जो थोड़े से अननोन है, लाइक A.K. रामानुजन और हर्ष मंदार और जैन गॉडियोसो और बिल ब्राइसन. बिल ब्राइसन इज ऑल्सो बिट फेमस. तो जो थोड़े से जो कम फेमस नेम है उनकी स्टोरीज भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्या नया हमारे सामने लाते हैं. एंड आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर देर आर फ्यू एक्सरसाइजेस लाइक थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट. ओके, थिंक अबाउट इट में हम लोग जो है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे और उसके बाद जो है टॉक अबाउट इट में वी विल डील अबाउट द स्पीकिंग पोर्शन. एंड एट द लास्ट part of your exercises after every chapter there are the suggested reading given to you. कुछ extra reading के लिए आपको जो है suggest किया जाएगा. if you get the time you will read them. So let's start with the first chapter, students. The first chapter is The Lost Child. Now before reading the chapter, let's see what has been written in the introduction. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? एक बच्चा है जो किसी मेले में अपने पेरेंट्स के साथ गया है. वो बहुत खुश है अपने पेरेंट्स के साथ और उसके पेरेंट्स उसको मिठाइयाँ और खिलौने खरीद के देने की स्थिति में नहीं है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली उसके पेरेंट्स काफ़ी गरीब हैं. बच्चा जब उस मेले में खिलौने या मिठाइयाँ देखता है तो ललचाता है, अपने माता पिता से उसकी मांग करता है, लेकिन वो हर बार मना करते हैं. फिर शायद कुछ ऐसा होता है कि वो जो है खो जाता है, वो बच्चा कहीं खो जाता है और खोने के बाद शायद किसी अजनबी के हाथ वो आता है और अजनबी उसको वो सब चीज़ दिलवाना चाहते हैं. तो क्या अजनबी उसको वो चीज़ जब दिलवाता है तो एक्चुअली वो बच्चा मना करता है, एक्चुअली वो बच्चा उन चीज़ों को लेने से मना करता है. क्यों मना करता है? ये सब आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं. द लॉस्ट चाइल्ड. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो स्टूडेंट्स, वसंत ऋतु का समय है और वसंत ऋतु में एक गांव में त्यौहार मनाया जा रहा है और मेला लगा है. बच्चे, बूढ़े, जवान, हर गली में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो खुशनुमा अंदाज में बहुत ही हैप्पीली वो उस मेले की तरफ जा रहे हैं. कुछ लोग तो पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़ों में, कुछ अन्य सवारियों में जा रहे हैं, बैलगाड़ी वगैरह में. एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा है और वो बहुत खुश है. नाउ अच्छा, कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. तो बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ते हैं. उसके माता पिता बच्चों को अपने बच्चे को बुला रहे हैं कि बच्चे हमारे साथ साथ चलो, क्योंकि वो बच्चा बीच बीच में जब उसको कुछ खिलौने की या दुकान
जो है खिलौने की वगैरह की दुकान दिखाई पड़ती थी तो वो रुक जाता था। माता पिता के बुलाने के बाद वो वापस दौड़ा दौड़ा उन तक पहुंच जाता था। उसकी आंखें सिर्फ खिलौनों की दुकान की तरफ ही जमी हुई थी। वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा था उन खिलौनों को खरीदने की। वो एक ठंडी निगाहों से उनको देख रहा था और काफ़ी सारे खिलौने देखने के बाद अंततः उसने कह ही दिया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। उसके पापा ने उसको लाल आंखें करके देखा, लेकिन मम्मी ने बच्चे का ध्यान मोड़ने के लिए ये कहा कि बच्चे देखो तो तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा दूर अपने आंखों के सामने देखो क्या है। क्या था? आंखों के सामने बहुत बड़ा एक मस्टर्ड फील्ड था, यानी सरसों का खेत किसी एक साइड में लगा हुआ था। मतलब सरसों का खेत किसी एक तरफ था जहां पर सरसों उगे हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मीलों की दूरी पर जमीन में वो सरसों लगे हुए थे। बच्चे को ये दिखाया गया ताकि उसका ध्यान खिलौनों की तरफ से मुड़े। आगे पढ़ते हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on to the footpath." He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. "Come, child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. ड्रैगन फ्लाइज का मतलब बच्चे आपको पता होगा, ड्रैगन फ्लाइज को वो जो है तितली की तरह दिखने में होती है। तो ड्रैगन फ्लाइज चारों तरफ अपने बैंगनी कलर के पंखों को फैलाए हुए, खूबसूरत पंखों को फैलाए हुए यहाँ वहाँ घूम रहे थे उस मस्टर्ड फील्ड में। और बहुत सारे बटरफ्लाइज भी वहाँ पे थे जो मधु की तलाश में, हनी की तलाश में फ्लावर्स के ऊपर मंडरा रहे थे। बच्चा वो सब देखता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये बटरफ्लाइज या ड्रैगन फ्लाइज काफ़ी फास्ट होते हैं और इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हम पकड़ सकते हैं इनको, मैंने तो बचपन में इनको पकड़ा भी था, बटरफ्लाइज को भी पकड़ा था, ड्रैगन फ्लाइज को भी। बचपन की बातें हैं, बचपन में मैंने ड्रैगन फ्लाइज को भी खूब पकड़ा है, बटरफ्लाइज को भी खूब पकड़ा है दोस्तों के साथ मिल करके। तो ये एक शौक़ था जो कुछ समय के लिए था, क्योंकि ये इतने खूबसूरत होते हैं। बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज इतने खूबसूरत होते हैं कि बेहद ज़्यादा आकर्षित करते हैं हमें ये। तो बच्चे अक्सर इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और इन्हें पकड़ना चाहते हैं। हम पकड़ते थे और पकड़ने के बाद फिर वापस छोड़ भी दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चा है ये पकड़ने की जब कोशिश कर रहा है तो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है। ये फड़फड़ाते हुए उसके हाथ से बार बार गायब हो जा रहे हैं। ये लगभग करीब पहुंच जा रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर जब ये एक्चुअल में अपनी हथेली से उन्हें पकड़ने की या उंगलियों से उन्हें पकड़ने के लिए फाइनल ब्लो देगा, तभी वो भाग जा रहे हैं, अंततः पकड़ में नहीं आ रहे। मम्मी ने उसको, बच्चे को कहा कि बच्चे अब हमारे साथ साथ रास्ते के ऊपर चलो। बच्चा जो है अपने माता पिता को ध्यान से देख रहा है और खुश है वो, और उनके पीछे पीछे चल रहा है। फिर एक जगह वो छूट गया क्योंकि उसको कुछ कीट पतंगे दिखाई दिए, ठीक है, जो अपने अपने बिलों से बाहर निकल करके सनशाइन एंजॉय कर रहे थे, सूरज की रोशनी एंजॉय कर रहे थे। तो ये देख करके बच्चों को वो कीट पतंगे या कुछ अलग प्रकार के कीड़े आकर्षित किए और वो रुक जाता है एक जगह। फिर से माँ बाप ने आवाज़ लगाई, बच्चे जल्दी आओ,
और वो आवाज़ जब लगाए तब वहाँ से आवाज़ लगाए, एक कुएं से आवाज़ लगाए, कुएं के पास से, एक कुएं के पास में वो बैठ गए थे और वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई। बच्चा वहाँ पर चला गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. "Come, child, come." They called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. तो देखो बच्चों क्या होता है, ये बच्चा वहां रुक जाता है तो उसके माँ बाप एक कुएं के सामने बैठ करके उन्हें बुलाते हैं। तो बच्चा वहां पहुंचता है। बच्चा वहां पहुंचने के पहले कुछ रंग बिरंगे फूलों को तोड़ने लग जाता है। अपने माँ बाप की बात ठीक से वो सुनता ही नहीं है, लेकिन तभी वो फिर से उसको किसी जो है डव नाम के पक्षी की आवाज़ आती है, जो कि एक प्रकार से दिखने में जो है कबूतर की तरह होता है। डव पक्षी जो है वो कबूतर की तरह दिखने में होता है, वाइट कलर का। तो उसकी आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ में वो खो जाता है और माँ बाप को चिल्ला के बोलता है, "डव, डव।" बस इतना बोल करके वो हाथों में जो फूल तोड़ा था उनको छोड़ करके वो माँ बाप की तरफ भागता है। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow. और बच्चे को लेकर के वो एक पतला रास्ता पकड़ते हैं। पतले रास्ते को पकड़ करके एक्चुअली वो अभी तक उस मेले में पहुंचे नहीं है। मेले में पहुंचने के पहले ही रास्तों में टॉयस के ठेले लगे हैं, तो अभी वो रास्ते में ही है। अभी ये बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ पहले तो मिट्टी के रास्ते से, मिट्टी के किसी मैदान से, मतलब एक मैदान से होते हुए आगे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर स्टेज में जा कर के उसको मस्टर्ड फील्ड देखने को मिलते हैं। मस्टर्ड फील्ड को क्रॉस करने के बाद पक्की सड़क आती है, और उस पक्की सड़क पर चलने के बाद वो मेला आएगा। हाँ, तो फिर आगे पढ़ते स्टूडेंट्स। आगे क्या होता है? एज दे नियर द विलेज, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो देखो स्टूडेंट क्या होता है कि उस बच्चे को बुलाया जाता है माँ बाप के द्वारा, और वो माँ बाप के द्वारा बुलाए जाने पर उनके साथ आता है। अब वो लोग मस्टर्ड फील्ड को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो एक गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर मेला लगा हुआ है, बच्चा फुटपाथ में बहुत सारे ठेले वाले को देख रहा है जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें रख के रखे हैं, सजा करके रखे हैं, ठीक है। और वो इनको देख करके बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोकने की कोशिश भी करता है। देखो, कन्वर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करना, रिपेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से अपने आप को दूर करना, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित होना, कन्फ्यूजन का मतलब आप जानते ही हो। तो जैसे जैसे वो अपने माता पिता के साथ उस गांव के मेले में एंटर हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेशन, बहुत ज़्यादा आकर्षण तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोकने की भी कोशिश कर रहा है। इन ठेले वालों में जो अलग अलग अच्छी चीज़ें ये देख रहा है, ठेले वालों के द्वारा रखी गई जो अच्छी चीज़ें देख रहा है, इनसे वो कहीं ना कहीं आकर्षित होने के बावजूद अपने आप को रोक रहा है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. "I want that barfi," he slowly murmured,
But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. ठीक है. A flower seller hawked a garland of gulmohar. A garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो देखो स्टूडेंट्स, दो इंसिडेंट्स होते हैं. आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि एक मिठाई वाले ने, स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई वाला, एक मिठाई वाले ने जोर से चिल्ला करके कहा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. ये उसने चिल्लाया. रंग बिरंगी बहुत ही खूबसूरत सी मिठाइयाँ रखी हुई थी. कई सारी मिठाइयों के ऊपर सिल्वर या गोल्ड के वर्क, मतलब सोना और चांदी के वर्क लगे हुए थे. देख करके वो बहुत आकर्षित हुआ. बच्चे ने ललचाई आंखों से उन चीज़ों को देखा, मिठाइयों को, और उनमें से उसको बर्फ़ी पसंद थी. उसके मुंह से निकल पड़ा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए. लेकिन उसे मालूम था कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, माता पिता उसको खरीद के नहीं देंगे. तो बिना आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ जाता है. थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसको एक फूल बेचने वाला मिलता है जो अलग अलग प्रकार के बुके यानी कि गुलदस्ते बना करके फूल बेच रहा था. उसने कहा गुलमोहर का गुलदस्ता, गुलमोहर का गुलदस्ता. उसने कहा. बच्चा उसकी तरफ भी आकर्षित हुआ, धीरे से बोला भी कि मुझे वो गुलदस्ता चाहिए, लेकिन उसको पता था कि उसके माता पिता ना करेंगे ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण. इसलिए वो आगे बढ़ गया. उसको ये पता था कि माँ बाप को अगर पूछा जाएगा तो माँ बाप बोलेंगे कि ये अच्छे नहीं हैं या कोई भी बहाना करेंगे. इसलिए वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ जाता है. ठीक है. तो आज स्टूडेंट हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद आगे पढ़ेंगे. और फिर उसके बाद जहाँ तक पॉसिबल हुआ तो हम लोग एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ को डील करेंगे. सो अभी हम लोग इस चैप्टर को ही मूव्ड ऑन, जहाँ तक आप स्क्रीन में देख रहे हो, यहीं तक पढ़ के छोड़ते हैं. तो यहाँ तक आप टिक कर सकते हो, ही मूव्ड ऑन तक. वी हैव रीड अ चैप्टर टुडे अप टिल a few paragraphs we have read today. So tomorrow, I mean the next day, on the next class, we will read the latter portion of this chapter. So students, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को अब पढ़ना शुरू कर दो, because from today onwards I have started the supplementary reader. और जैसा कि मैंने बोला आपको कि सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आई मे स्टार्ट द बी हाइव चैप्टर 1. फिर बाद में हम लोग बी वाई इस बुक का एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग बी हाइव का एक चैप्टर शुरू कर सकते हैं. ये जो मोमेंट्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स शायद मैं आपको लिखवा सकता हूँ. तो वर्ड मीनिंग्स जब मैं आपको दूंगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स मीन्स टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को डील करने के पहले ही अगर मुझे देना हुआ तो मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख करके दे दूंगा, और जो कि आपको सभी वर्ड मीनिंग्स या क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह आपको नोटबुक में ही करना होगा. तो मेक ए फेयर नोटबुक. अभी तो कुछ नहीं करना है. जैसे ही मैं आपको वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिखवाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द लॉस्ट चाइल्ड. और सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग्स लिखनी है और वर्ड मीनिंग्स के बाद आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखना होगा. ठीक है. तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.